Hello and welcome to yet another very important series, which is based on the Lakshmikant series. Basically, we all know that Lakshmikant की जो नई edition है, that is there in the market, which is the seventh edition, and this has been requested by many कि हम इस series को word to word complete करें, पूरी book को complete करें, because we are hardly left with 6 to 7 months, I guess, for prelims, right? So, having said that, let's begin with this series, and I'll try कि this series is really helpful for people who are appearing in 2024. Apart from that, as we all know कि Indian polity का जो subject matter है, this comes into almost every competitive examination. So it's very important for us to build the base, to build the foundation. And if I talk about the seventh edition of this book, foundation wise as such इस book में कुछ बदला नहीं है, but then there are few appendixes जो कि इसमें add हुए हैं, and now the page number wise जो है अब chapters मिलेंगे आपको, ना कि series या chapter number wise जो कि sixth edition में आपको मिलते थे. चलिए, तो ये हो गई changes की बात. Now what are we going to do is we'll be moving from chapter to chapter. I leave this question to you. You can reply it onto my Telegram channel or in the comment section whether you want this series to be done page wise, word wise, or you want me to do this series according to the topic. जैसे वी ऑल नो कि वी रीड लक्ष्मीकांत टॉपिक वाइज, ठीक है, हम टॉपिक वाइज चलते हैं लक्ष्मीकांत को. इट यूजुअली हैपन्स कि किसी ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहली बार में ही पढ़ा होगा. पीपल यूजुअली स्टार्ट बाय रीडिंग द यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, पार्लियामेंट वाला पार्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट, वहाँ से शुरू करते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू डिफरेंट चैप्टर्स. या तो हम उसको उस तरीके से कवर करें, या फिर if you all want me to cover it page by page and word by word, we can also do that, right? So I'll be waiting for your answers, for your replies to this. Having said that, let's start with the series. तो जो पहली लाइन है इस बुक में, जो पहला चैप्टर है, that is historical background, and the first and foremost line of that chapter says, the Britishers came to India in 1608 as traders in the form of the East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600. तो ये है पहली लाइन जहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कह लें, या आप इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए, फ्रीडम स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए, आप जो इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है, जैसे कि मैंने पॉडकास्ट सीरीज़ में ही बताई है आपको, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो वी ऑल नो कि the history of India, especially the India as a nation, and if I solely talk about the polity wala portion, the constitution wala portion, why is it important for us to read the historical background? We need to know the basics of the constitution. We need to know the reason behind why the constitution has been framed. Constitution या संविधान अपने देश में क्यों आया, कहाँ से उसका बैकग्राउंड है, उसका बेसिक्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना. तो कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं, दैट वी नीड टू नो. तो पहला चैप्टर है एज ऑलवेज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, बट देन इफ़ देर आर रिप्लाइज, अगर आप लोग बोलते हो कि वी शुड गो बाय द टॉपिक्स जैसे हमने पिछली सीरीज़ में किया है, तो वी कैन डू दैट एज वेल. बट देन आई गेस ये वाला सीरीज़ भी ठीक है इफ़ आई गो बाय चैप्टर वाइज, ठीक है. अगर हम चैप्टर वाइज भी जाते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच. बस ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सब थोड़ा सा डिलेड आएगा, बट ठीक है. एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने वर्ड बाय वर्ड इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया है.
Right? Having said that, let's move ahead. Now let's have the most simplistic explanation of the historical background. वो एक थोड़ा सा simplistic explanation देखते हैं, background देखते हैं थोड़ा सा. So actually what happened is the story begins approximately in 1600. तो द स्टोरी बिगिनस इन 1600. ठीक है, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, द स्टोरी बिगिनस इन 1600. तो लंदन में 1600 में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ कंसिडरिंग अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी, तो ईस्ट इंडिया प्राइवेट कंपनी थी और 1600s में इस कंपनी को लंदन में बनाया गया. नाउ दिस कंपनी वॉज मेड बाय द रिच पीपल ऑफ लंदन इन दैट टाइम. और इनका जो पर्पस था वो ये था कि इस कंपनी को वो अलग अलग जगह पे डेवलप करेंगे फॉर डिफरेंट बिजनेस पर्पसेस. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, as the circumstances and as the fate intended to meet, over the period of next 150 years became the most powerful territorial power. तो 1600 के बाद ये इंडिया आए एज ट्रेडर्स और ये इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन, रॉ मटेरियल जो होते थे ये उसको ट्रेड करते थे. तो ये बेसिकली ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए और ये इन चीज़ों को ख़रीद के ये वापस इंग्लैंड में और यूरोप में ले जाया करते थे. एंड दिस वाज देयर मेन जॉब. बट बिकॉज इट वाज 16th and 17th century, दिस प्राइवेट कंपनी यूज टू मेंटेन इट्स ओन आर्मी. इनके पास खुद की आर्मी हुआ करती थी, विच उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा रिच भी थे बिकॉज दे हैव द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड. तो इनके पास मोनोपोली भी थी. नाउ बिकॉज दिस वाज 16th and 17th century, दिस प्राइवेट कंपनी यूज टू मेंटेन देयर ओन आर्मी. क्योंकि इनके ये रिच थे और ये अपनी खुद की आर्मी मेंटेन करते थे. ये काफ़ी ज़्यादा रिच थे बिकॉज ऑफ द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड. इनके पास मोनोपोली थी पूरे के पूरे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में. सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी जो थी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो है वही ट्रेड कर सकते थे पूरे के पूरे अफ्रीका, ईस्ट, जितने भी जोग्राफिकल एरिया थे. ठीक है, सो दे वर वेरी रिच एंड दे यूज टू मेंटेन देयर ओन आर्मी. So from 1600 to approximately 1750, ये इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स की तरह रहा करते थे. फिर 1750 से जो मुग़ल एम्पायर रूल कर रहा था इंडिया पे, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया. इफ़ यू विल रेफर टू माई पॉडकास्ट सीरीज़, वहाँ पे वी हैव गॉन अ बिट डीपर. हमने पूरी कहानी को समझा है कि हाउ द मुग़ल एम्पायर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, क्या क्या पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, क्या क्या हिस्टोरिकल इकोनॉमिक कॉजेज़ थे. ठीक है, कैसे डिसइंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ उस पूरे मुग़ल सल्तनत का, किस तरीके से वो टूटे, किस तरीके से उनकी सल्तनत जो है वो कमज़ोर पड़ी है. वी हैव गॉन अ बिट डीप एंड वी हैव सीन दैट टॉपिक. तो वो वाला जो हिस्ट्री का पोर्शन है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जो बेस है, और यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी का बेस है, दैट इज़ मोर और लेस सेम. ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े से एक्ट्स वगैरह की बात करेंगे, क्राउन रूल और कंपनी रूल के बारे में बात करेंगे जो वहाँ नहीं होती एज सच. बट देन अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप के ट्रेडिंग मोनोपोली और ट्रेडिंग वाले एस्पेक्ट की बात करें जो हिस्ट्री में हमने पढ़ी है, तो वो वाली चीज़ सेम है. Now, this is where the linking of two subject comes into play. This is how you link two subjects. You need to understand. अगर आपने वहाँ उसको समझा है अच्छे से, यहाँ पे आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा. ठीक है, मूविंग अहेड. जब मुगल्स डिसइंटीग्रेट हुए
तो बाकी सारे कुछ रीजनल प्लेयर्स थे, मराठास हो गए आपके, ठीक है, डेक्कन हो गया, वो सब हमने डील किया है वहाँ पे पॉडकास्ट में, वो आप आई एम श्योर हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे. तो देयर वर रीजनल पावर्स, देन देयर वर यूरोपियन पावर्स, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़, ये सारे, ठीक है, ब्रिटिश, ये लोग टाइम एंड अगेन अपने अपने टाइम पे आते हैं और ये उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. Now obviously we know कि Britishers were the final winners of it. So since 1750s ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बन के निकलती है सिंस 1750s से आगे. ठीक है. तो एक टेरिटोरियल पावर इनकी, टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल पावर इनकी गेन होती है. ठीक है. ये हमें पता है कि अल्टीमेट विनर जो थे वो थे ब्रिटिशर्स. वी नो दिस वेरी वेल. एंड देन मूविंग फ्रॉम 1750s टू 1770s, जब इन्होंने अपनी टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर को जमा लिया था इंडिया में, तब बैक इन ब्रिटेन जो पार्लियामेंट थी वो अपनी पावर एक्सरसाइज करने लग गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर. नाउ फॉर दीज 2 decades व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज देयर in India, when that was playing monopoly over the trade and it was exercising its power, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करने लगती है. ये थी तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन इसके ऊपर या इनके जो रूल्स थे लागू होते थे, या जिस भी चीज़ पे इनके परमिशन थी, जो इनकी लीगैलिटी थी, वो वहाँ के मोनार्क ने प्रोवाइड की. ठीक है. So this was given a charter by the Queen of the England of the time. तो क्वीन एलिजाबेथ ने इनको चार्टर राइट्स दिए. How did they do this? By passing certain laws. तो इन्होंने कुछ लॉज पास किए जिसके थ्रू वहाँ की पार्लियामेंट इस प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर अपने पावर्स को एक्सरसाइज करती है. ठीक है. अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ कंपनी रूल्स थे, चार्टर एक्ट्स थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है. आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा. तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है, दैट हैज़ बीन मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और अभी हम आगे देखेंगे पीपीटी में. बेसिकली थी तो ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन अब इंडिया में इसका पॉलिटिकल और टेरिटोरियल पावर जब इसने गेन कर लिया, जब इसने अपने पॉलिटिकल और टेरिटोरियल पावर को गेन कर लिया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इनके ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए कुछ एक्ट्स, कुछ रूल्स पास करती है, जो कि था पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. नाउ बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है, बट देन जब 2 decades 20 साल, तो बेसिकली पहले 150 साल में इन्होंने अपनी मोनोपोली जमाई, इनकी मोनोपोली बनती है बिजनेस में. और उसके बाद ही जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रियलाइज़ होता है कि नाउ दे आर बीइंग द बिगेस्ट पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल पावर इन इंडिया, दे स्टार्टेड असर्टिंग फ्यू लॉज, जिनमें से पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. अब हमें ये सारे के सारे एक्ट्स जो हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, तो सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चंस जो कि हमें पूछे जाते हैं. अब थोड़ा सा बेसिक्स पे चलते हैं जो अभी तक हमने समझा है. लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द कंटेंट ऑफ द बुक, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत. इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सी व्हाटएवर पीपल मे से, नोबडी इज गोइंग टू लीव दिस बुक. ठीक है. और दिस विल बी अ सजेशन, अगर किसी के पास 6th एडिशन से पुरानी बुक है, आई वुड से कि यू शुड स्विच टू दिस वेरी एडिशन, बिकॉज कई ऐसे चैप्टर्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैसे तो 6th एडिशन से ही शुरू हो गई थी, लेकिन दिस नीड्स एन अपडेट नाउ. ठीक है. तो अपनी बुक को अपडेट करिए. लेट्स हैव अ लुक. सो the first line of the book of the chapter historical background says the British came to India in 1608 एज ट्रेडर्स. तो अभी हमने वही समझा कि 1600 में ये आते हैं एज ट्रेडर्स.
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही उठ के चले आए थे, इनको क्वीन एलिजाबेथ वन जो उस समय की क्वीन थी, इन्होंने एक चार्टर दिया था कि एक राइट दी थी, एक चार्टर दिया था विच हैज़ बीन ग्रांटेड बाय हर इन 1600 सो दैट दे कैन कम टू इंडिया एंड दे कैन ट्रेड। अब 1765 पे डायरेक्ट आते हैं। यही कंपनी जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, 1765 में द कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस, अभी तक इनके पास प्योरली सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस थे, बिजनेस फंक्शंस थे। ये स्पाइसेस, रॉ मटेरियल्स, कॉटन ये इंडिया से ले जाते थे और यूरोप में बेचते थे, तो इनका अभी तक ये काम था। Till now they only had the trading functions, right? Obtained the दीवानी rights. अब 1765 में इनको मिलती है दीवानी राइट। दीवानी राइट का क्या मतलब हुआ? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो रेवेन्यू के ऊपर इनको राइट मिली। अब पूरे भारत में नहीं मिली इन्हें राइट, माइंड दिस। इनको पूरे इंडिया में या पूरी टेरिटरी में ये राइट ऑब्टेन नहीं हुई, इन्हें ऑब्टेन होती है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, दीज आर स्मॉल फैक्ट्स बट देन ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनिशियली इनको ट्रेडिंग राइट्स जो हैं वो ग्रांट हुए। ठीक है, नाउ यहाँ से सिंस 1765 इनका जो टेरिटोरियल पावर का करियर है, दिस बिगैन आफ्टर दे गॉट दिस दीवानी राइट। तो यहाँ से इनका जो करियर है ट्रेडिंग राइट का वो स्टार्ट होता है एज अ टेरिटोरियल पावर। फिर 1858 में यू विल सी कि इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटनी, जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है सबसे बड़ा, जो 1857 में हम देखेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो सबसे फेमस है, जिसको पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। आफ्टर दैट रिवोल्ट, इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटनी, British Crown assumed direct responsibility of governance of India. So that is the year जो कि historical perspective से और political perspective से एक बहुत major important role play करता है आपके बेसिक्स पे, आपके फाउंडेशन पे और आपके हिस्ट्री पे। नाउ दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि 1765 में इनको टेरिटोरियल पावर अज्यूम हो जाती है बाय गिविंग दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स इनको मिलती है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सबसे बड़ा सिपॉय म्यूटनी हुआ है 1857 में, 1858 में ब्रिटिश क्राउन 1858 में ब्रिटिश क्राउन अपना डायरेक्ट कंट्रोल, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेती है गवर्नेंस पोर्शन पे इंडिया के, करेक्ट। और इस यही पावर जो इनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है वो चलती है आपके 1947 तक, टिल द नेशन गॉट इंडिपेंडेंट। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली तब तक 1858 से ये वाला एस्पेक्ट जो है वो चल रहा है। ठीक है, तब तक गवर्नेंस पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। Now this forms the basics of Indian polity. What was the need of Indian Constitution? आज अगर हमारे देश में संविधान के ऊपर सारी चीज़ें लागू हैं, आज हमारे देश में अगर every little functioning, every law, every rule is governed by the Bible of the nation, that is Indian Constitution, what was the need of that बुक? व्हाट इट्स बेसिकली अ बुक है ना, बुक है वो, एक चार्टर है। उस बुक की, उस संविधान की एक्चुअली में ज़रूरत क्या पड़ी जो हमने उसको लागू किया? वो यही ज़रूरत थी। हमने 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन अपना डायरेक्ट कंट्रोल लेती है इंडिया के ऊपर, जब उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया के ऊपर आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड सिंस देन टिल 1947 ऑलमोस्ट फॉर ह्यूज चंक ऑफ ईयर्स अगर हम देखें तो इनका कंट्रोल है।
उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी को तो चलाना है ना देश, कहीं से तो गवर्नेंस मिलनी चाहिए। देयर कम्स द नीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो विद independence came the need for a constitution, hence the reason a constituent assembly was formed। इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें, ठीक है। was formed for this purpose in 1946 and on 26th January 1950 the constitution came into being। This was the reason constituent assembly was formed। Why? So that we can have a constitution of our own। With independence came the need of the constitution, correct? However, various features of Indian constitution and polity have their roots in British rule। जैसे when we'll see the Government of India Act of 1935, that act, उस act में हम देखेंगे कि almost every point of that act has a place in today's constitution, ठीक है। तो वो एक ऐसा एक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉइंट लिखा गया इस बुक में, इस चैप्टर में, कि कई ऐसे फीचर्स हैं जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे, उनके टाइम पे जो एक्ट्स आए थे, उनके टाइम पे जो लॉज थे, वहाँ से गवर्न होते हैं। सो देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिश टाइम के समय पे, ब्रिटिश रूल के समय पे कुछ ऐसे लॉज थे, कुछ ऐसे लीगल फ्रेमवर्क सेट हुए जो कि आज भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे जो है अपना बेसिक्स मिलाती है, मतलब मिलता है हमें उनके बेसिक्स, उनके फंक्शनिंग का जो बेसिक्स है वो हमें ब्रिटिश रूल के टाइम से रूल में मतलब मिलेगा। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। हमने कवर किया था वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के पॉडकास्ट में कि मुग़ल एम्परर जो शाह आलम थे, इन्होंने कंपनी को दीवानी राइट्स दी थी, दीवानी राइट्स ओवर द रेवेन्यू, ठीक है। तो मुग़ल एम्परर शाह आलम ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द कंपनी आफ्टर इट्स विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर। हमने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, उसके बाद ही शाह आलम ने कंपनी को दीवानी राइट्स दी थी ब्रिटिश को इंडिया में, इन ब्रिटिश इंडिया, फिर ब्रिटिश इंडिया बोलने लग गए थे। सो दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। एंड दो मेजर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दो मेजर रूल्स हैं। पहला है कंपनी रूल जो कि चला है आपका 1773 में, अभी हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ, which went on till 1858, and then after the huge Sepoy mutiny of 1857, after the first war of independence in 1857, 1858 में जब क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली अपनी इंडिया के ऊपर, तब से 1947 तक चला है क्राउन रूल, ठीक है। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें ये समझना है कि पहले जब कंपनी आई, जब, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, ये इंडिया में आती है, ये अपनी मोनोपोली लेती है ट्रेड में, वाइल ट्रेडिंग इन स्पाइसेस, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये ले जाते हैं यूरोप में, ये वहाँ पे बेचते हैं उसको। तो उस समय कंपनी रूल चल रहा था। तब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आके 150 साल में ही अपनी मोनोपोली होल्ड कर रही है इंडिया में, एक टेरिटोरियल पावर एज्यूम कर रही है इतनी बड़ी टेरिटरी में, तो वी शुड लीगलाइज इट्स फंक्शनिंग। तो वो उसके ऊपर लॉज अप्लाई करने लग गए, फर्स्ट वन बीइंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऐसे याद करना कि पहले आया कंपनी रूल, क्योंकि पहले कंपनी आई थी, इट्स अ ट्रिक बेसिकली। और ये चला है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक, विच वॉज टिल 1858, एंड देन केम द क्राउन रूल व्हेन द क्राउन अज्यूम्ड इट्स डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विच वॉज इन 1858, एंड दिस रूल वेंट ऑन टिल द नेशन गॉट इंडिपेंडेंस, विच वॉज इन 1947। क्लियर इनफ? इसके बाद चलिए कंपनी रूल से स्टार्ट करते हैं। कंपनी रूल बिगैन विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, करेक्ट। अब ये जो एक्ट है, ये
बहुत ही बड़ा, बहुत ही ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है. नाउ व्हाई? It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. अभी हमने बेसिक्स पे बात की थी, अभी हमने हिस्ट्री पे बात की थी, और हमने ये देखा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ये देखती है कि ये कंपनी इंडिया में आके विद इन अ स्पैन ऑफ 150 years it's having the monopoly over this territory, it's having the greatest territorial power, they laid the लीगल फ्रेमवर्क, दे लीगलाइज्ड दिस कंपनी. ये उसके ऊपर लॉ अप्लाई करने लग गए. एंड यही पहला स्टेप है. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज द फर्स्ट स्टेप of legalizing East India Company by the British Parliament. So this is how the British government started regulating the affairs of East India Company for the very first time. Correct? Second point is it recognized for the first time the political and administrative functions of the company. पहली बार, क्योंकि ये लीगलाइज कर रहे हैं ना, ये पहली बार जब कंपनी को इन्होंने देखा कि एक टेरिटोरियल पावर, एक पॉलिटिकल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रैब कर चुकी है इंडिया में आके, तो नाउ दे स्टार्टेड लीगलाइजिंग इट्स अफेयर. इन्होंने रिकॉग्नाइज किया पहली बार कि किस तरीके से कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वर्क करेंगे. थर्ड, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल administration in India. Now, how would the central administration function in India? Through this act, through the act of 1773, they laid the foundation of the central administration. ठीक है, अब इस एक्ट के फीचर्स को देखते हैं. पहला पॉइंट है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ये है कि कुछ फीचर्स ऐसे भी होंगे जो प्योरली फैक्ट्स होंगे, बट देन इफ़ यू सी द क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी, यू विल सी कि मैच द कॉलम करके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, वो सीधा एक्ट्स और ईयर पूछते हैं. रेगुलेटिंग एक्ट में क्या फ़ीचर था, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या फ़ीचर था. ठीक है, इस तरीके से वो मैच द कॉलम में क्वेश्चंस रखते हैं. यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी एक्ट. आप फीचर्स को चाहे रटें चाहे समझ लें, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, वी कांट हेल्प इट, तो ये हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, पहला एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसका पहला फीचर है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. एंड आफ्टर दैट इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members. तो गवर्नर जनरल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 members की, ताकि वो उनको असिस्ट कर सकें. ठीक है, फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. ये इनकी फ़ोटो है. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के बनाए गए. Second point, it made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal. तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हो गए थे. तो इट मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अनलाइक अर्लियर, पहले क्या था, ये 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, दीज 3 प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट. ये तीनों इंडिपेंडेंट थी, कोई किसी पे लिंक नहीं था, कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं था. बट नाउ when they made the governor of Bengal, they designated the position of governor of Bengal as the governor general of Bengal now, and also they made the Bombay and Madras presidencies as the subordinate of Bengal presidency. They made Bombay and Madras presidency
dependent upon the Bengal presidency, unlike earlier. तीसरा point है, it provided for establishment of Supreme Court at Calcutta. ये point काफ़ी important है. Supreme Court का British rule में जो establishment हुआ कैलकटा में हुआ, which was back in year 1774, comprising one chief justice and 3 other judges. ठीक है, तो पहला जो establishment होता है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में, ब्रिटिश रूल में ही सही, that was in 1774 in Calcutta. This point is important. Next point is it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट था इस एक्ट के अंदर, जो कि था कि इस कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे, द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड. ये कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, या ये कोई प्रेजेंट, गिफ्ट या ब्राइब जो है वो नेटिव से एक्सेप्ट नहीं कर सकते. लास्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी. जाहिर सी बात है, हम ये देख रहे हैं कि इस एक्ट को ही लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू. वाई? सो दैट दे कैन हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द कंपनी, राइट? सो बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच वर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया. अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर बढ़ाने के लिए दे रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का फंक्शन क्या था या किस लिए बनाई गई? टू गवर्न द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, on the basis of revenue, military and civil affairs. तो ये गवर्निंग बॉडी थी जो कि रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स के ऊपर रिपोर्ट बैक करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक गवर्निंग बॉडी इंडिया में बनाई गई जिनका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. अब क्योंकि ये रूल बना है तो अमेंडमेंट भी आएगा, है ना? तो अमेंडिंग एक्ट आया इसका 1781 में. So in a bid to rectify the defects of Regulating Act of 1775, कुछ इनके मिस्टेक्स थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपका रेगुलेटिंग एक्ट का अमेंडमेंट पास किया गया 1781 में. एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 which is also known as the Act of Settlement. So first came your Regulating Act of 1773 and then came your Act of Settlement in 1781. इसको भी याद रखना. So if we understand the features ना, you don't need to mug up the features. हम अगर समझ लें logically, if we go by the historical points of these acts, we don't need to really mug up the points of the acts, the features of the act. So having said that, let's have a look onto the features of the amending act of 1781 which was also known as the Settlement Act. इसके features पे अगर हम आएंगे तो we'll see कि गवर्नर जनरल को लेके there were certain changes that have been made in this act, जो कि हमारा एक रेक्टिफाइंग एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट के लिए. तो बेसिकली पहला फीचर जो है वो ये है कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स दैट हैव बीन कैरीड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर जनरल और जो उनकी काउंसिल थी, अगर उन्होंने किसी एक्ट को कैरी ऑन किया है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया. ठीक है. सिमिलरली it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions. तो जो servants थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के,
उनके भी एक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट है जो कि रेक्टिफाई किया गया सेटलमेंट एक्ट के अंदर में। Now, the second point says it excluded the revenue matters and the matters arising in the collection of revenue from jurisdiction of Supreme Court। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction से revenue matters को भी exempt कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो कलेक्शन या रेवेन्यू मैटर, तो रेवेन्यू कलेक्शन या होल ऑफ द रेवेन्यू मैटर्स, इट ऑल गॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वील सी हियर कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन तो हुआ है, बट देन रेक्टिफाई करने के पॉइंट पे अगर हम पहुंचते हैं इस एक्ट को, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट को इफ वी सी, तो वील सी कि जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर दी गई थी। ठीक है, कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल, उनके एक्ट्स इनटू द ऑफिशियल कैपेसिटी एंड आल्सो हिज काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। We have seen कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया कैलकटा में, और यहाँ पे अब रेक्टिफाइंग एक्ट ऑफ 1781 में 1781 में हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं कैलकटा में, उनकी ज्यूरिसडिक्शन को सुप्रीम कोर्ट के हाथ कर दिया गया। ठीक है, सो इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। जैसे हिंदू, सो हिंदू वेर ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, मुस्लिम्स वेर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। मतलब कि जो इनहैबिटेंट्स हैं कैलकटा में, बेसिकली ये जो रेक्टिफाइंग लॉ है, ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम देख रहे हैं, जो अमेंडमेंट किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में, उसमें जो तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पहले दो पॉइंट्स देखे कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के जो एक्ट्स हैं, उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर उन्होंने जो एक्ट्स किए होंगे, उस एक्ट को ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट वॉज दैट रेवेन्यू मैटर्स को भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इंक्लूडेड द inclusion of the jurisdiction of Supreme Court as far as the inhabitants of Calcutta are concerned। तो inhabitants में आपके हिंदूज हैं, हिंदूज के जो ट्रायल्स होंगे वो हिंदू लॉ के ऊपर गवर्नड होंगे, मुस्लिम्स के जो ट्रायल्स होंगे, जो डिफेंडेंट्स मुस्लिम्स हैं, उनके जो ट्रायल्स होंगे वो मोहम्मदन लॉ पे गवर्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट लेड डाउन दैट द अपील्स from the provincial courts could be taken to the governor general and council and not to the supreme court। मतलब जो provincial courts की अपील हैं वो हायर कोर्ट को जाती हैं। वी ऑलरेडी नो इन टुडेज टाइम सिस्टम क्या है, सिस्टम ये कि लोअर कोर्ट से हम हायर कोर्ट की तरफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट, द कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उस समय पे प्रोविंशियल कोर्ट्स जो हैं वो गवर्नर जनरल के पास अपील लेके जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। दिस वाज अनदर मेजर पॉइंट एंड विच टेल्स अस कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को बेसिकली कितना रेक्टिफाई किया गया इस सेटलमेंट एक्ट के अंदर में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। वी कैन सी हियर कि in place of empowering Supreme Court to make such laws, to frame regulations for provincial courts and councils, गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए लॉज को रेगुलेट करें। Right, so this was the amending act of 1781 which is also known as the act of settlement। बहुत important है, इसके points याद रखना important है। ठीक है, more or less we have understood कि किन किन capacities में
किसकी पावर को एम्पावर किया गया, जैसे गवर्नर जनरल की पावर को एम्पावर किया गया है, एंड व्हाट कैपेसिटीज द jurisdiction of Supreme Court has been limited. Right now, moving on to the next act, which is the Pitt's India Act of 1784. अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, इसके फीचर्स को समझना है और याद करना है. सो फर्स्ट फीचर इज it distinguished in between the commercial and political functions of the company. Now, the first ever law, the first ever act that has been made इस टाइम पे through the British government to distinguish, to differentiate the commercial and political functions of the company. इसको इन्होंने clearly disintegrate, distinguish कर दिया. Second point, it allowed the court of directors. हमने देखा था regulating act के अंदर कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाएगा जिसमें 4 मेंबर्स होंगे. वी हैव ऑलरेडी सीन द रेगुलेटिंग एक्ट. ये उन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा है पिट्स इंडिया एक्ट, एंड इट इज सेइंग कि इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स. कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ कर दिया, लेकिन इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी फॉर political affairs, and this new body is board of control. The question that has been asked in various examinations including your UPSC prelims, वहाँ पे clearly पूछता है कि court of directors और board of control का establishment या उनका जो jurisdiction है, उनका जो power है, वो किस किस act के through आया है या उनकी power exactly है क्या. So this has to be very clear in your mind कि पहले COD आया, court of directors, and then while differentiating the powers of the company through Pitt's India Act, British government made a new body which was board of control to manage the political affairs of the company. So it established a system of double government. We can see here, अब यहाँ पे भी देखो एक सवाल पूछा जाता है, ये भी important concept है double government का. Just a second. We will see here कि ये जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्रिएट हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई लॉ या जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मुगलों के द्वारा चल रही थी तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एज सच नहीं आया था. और यहाँ पे डबल गवर्नमेंट की बात किस रेफरेंस में की जा रही है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड court of directors. Board of control to manage the political affairs. court of directors का already काम था commercial affairs को manage करना. Now next important point is it empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil and military government or revenues of British possessions in India. तो we have seen यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, एंड देन थ्रू दिस एक्ट ओनली इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस. तो बेसिकली अगर हम इस एक्ट के सिग्निफिकेंस को देखें तो इसकी जो सिग्निफिकेंस आ रही है वो 2 रीजन्स की वजह से आ रही है. पहला तो ये कि जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, दिस वॉज फर्स्ट टाइम नोन एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. तो जो पहले टेरिटोरियल गेन या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू द नेम ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. दूसरा मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रीज़न है वो ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दैट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो इन चारों पॉइंट्स के साथ वी हैव सीन स्पेशली थ्रू द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एंड देन वाया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784
वी अंडरस्टूड कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंप्लीट पावर पॉलिटिकल, टेरिटोरियल और रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर एक के बाद एक थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आती है. नाउ द थर्ड मेजर एक्ट ऑफ द कंपनी रूल इज योर एक्ट ऑफ 1786. इस एक्ट में जो मेजर एक रोल प्ले किया है वो किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. इनकी फ़ोटो ये रही, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो इनकी दो डिमांड थी. वाइल ही वॉज एक्सेप्टिंग दिस पोस्ट, he made two demands that has to be accepted. First was he should be given power to override the decision of his council in special cases. Special cases में काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर, ये उस चीज़ की पावर को डिमांड कर रहे थे. दैट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड अगर इनको पोजीशन में लाना था. एंड सेकेंड वॉज ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ. Accordingly, the Act of 1786 was enacted to make both the provisions. तो इनकी ये जो डिमांड थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों डिमांड्स फुलफिल हुई, और इसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट ऑफ 1786 को इनैक्ट किया गया while making both these provisions. Now, चार्टर एक्ट ऑफ 1793. अब इसके फीचर्स को देखते हैं. The first and foremost feature of this Charter Act of 1793 is it extended the overriding power that has been given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governors of the presidencies. मतलब जो डिमांड कॉर्नवालिस ने की थी अपने पोस्ट के लिए, उस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, इस एक्ट के थ्रू वो डिमांड, वो पॉइंट, वो प्रोविजन फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए और उनके जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स होते उनके लिए भी इस पॉइंट को लागू कर दिया गया. सेकेंड पॉइंट, it gave the governor general more powers and control over the government of the subordinate presidencies of Bombay and Madras. तो पहले हमने देखा कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी का सबॉर्डिनेट बनाया गया था. ठीक है. नाउ थ्रू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वी सी कि इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल के ऊपर ज़्यादा पावर और ज़्यादा कंट्रोल दिया गया over the subordinate presidencies of Bombay and Madras. Next point, and very important point, is it extended the trade monopoly of company in India for a period of another 20 years. अगले 20 साल के लिए इनकी trade monopoly को extension मिल गया. Next point, it provided that the commander-in-chief was not to be a member of Governor General's Council unless he was so appointed. जो कमांडर इन चीफ की डिमांड की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि इनको ओवरराइडिंग पावर्स मिले, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर मिले. एंड सेकेंड पॉइंट वाज ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर ऑफ चीफ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. इस पॉइंट में चौथा पॉइंट ये था कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जाएगा थ्रू प्रैक्टिस, बट देन किसी स्पेशल केस में अगर बनाया जा रहा है तो वो बात अलग है. देन इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज. नाउ दिस इज अ मेजर पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंडियन रेवेन्यूज के अंदर से, इंडियन रेवेन्यूज़ के हिसाब से इनको पेमेंट, इनको सैलरीज ड्रॉ की जाएगी. इनकी जो तनख्वाह होगी, इनको जो पैसे मिलेंगे वो इंडियन रेवेन्यू से जनरेट होते हुए मिलेंगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर हर साल ऑलमोस्ट सवाल आते हैं. 1813 का जो चार्टर एक्ट है. अब इसके फीचर्स देखते हैं. इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया. तो जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली चली आ रही थी पिछले 1775 से लेके 1800s तक, वहाँ जो कंपनी की मोनोपोली थी इस एक्ट के थ्रू उस ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश किया गया. इसका मतलब कि जो इंडियन ट्रेड था
that was thrown open to all British merchants. लेकिन जो मोनोपोली इनकी थी ब्रिटिश की ओवर टी and the trade with China, this still continued to be the monopoly of the company. Now this point is very important. एक बार इस पे सवाल भी आया है. So trade with China and trade in tea, these are the two important points. इन्हीं दो पॉइंट्स की मोनोपोली अभी भी कंपनी के साथ थी. इसके अलावा जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी के पास, दैट वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल द मार्केट, टू ऑल द ब्रिटिश मार्केट. इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया. तो ब्रिटिश क्राउन की जो सोवेरेनिटी थी वो कंपनी के ऊपर लागू की गई throughout the territory in India. It had owed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening people. Christian missionaries को बुलाया गया कि वो इंडिया में आए, वो लोगों को नॉलेज दें, enlightenment दें. It provided for the spread of Western education among the inhabitants of British territories in India. Western education को फैलाने का जो पॉइंट था, जो Western education को इम्पार्ट करने का जो डिसीजन था, जो फ्लो था, that began through Charter Act of 1813. Then it authorized the local governments in India to impose taxes on persons. So they could also punish the person for not paying taxes. Now this is where we see a very important point, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई कि वो लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज करें, और अगर इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट पेइंग टैक्सेस तो उनको वो पनिश भी कर सकते हैं. इसकी भी अथॉरिटी चार्टर एक्ट 1813 के साथ उनको दी गई. Now next important act which is Charter Act of 1833. एक ट्रिक है यहाँ पे, हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आया है. तो पहला 1813, दूसरा 1833, तीसरा 1853. So these three charter acts are very important. They came with the difference of 20 years. और इन तीनों के पॉइंट्स को, इन तीनों के फीचर्स को हमें समझना है. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के साथ साथ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया का फाइनल स्टेप देखा गया. तो दिस इज़ वेयर द फाइनल स्टेप बिगैन towards centralization in India, in British India, right? The features of this act made the Governor General of Bengal as the Governor General of India. We have seen कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, एंड नाउ थ्रू दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और इन्हीं के साथ साथ इनके अंदर कुछ पावर्स को वेस्ट की गई, इनको कुछ पावर्स दी गई, जैसे मिलिट्री और सिविल पावर्स. ठीक है. सो विद हिम vested in him all civil and military powers. Thus the act vested for the first time the government of India with authority over entire territorial area possessed by British in India. तो centralization का जो aspect है वो पहली बार Charter Act of 1833 से final step की towards गया, and we get to see that through this act for the first time गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली जो अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर दी गई ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया. नाउ लॉर्ड विलियम बेंटनिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो बेंटिंग थे जो कि पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के. Second very important feature of 1833, we are talking about Charter Act of 1833. Second most important feature, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. Law making powers जो होती हैं, जो थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास के पास, उन पावर्स को इस एक्ट ने डिप्राइव कर दिया, छीन लिया. गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया के जो थे विलियम बेंटनिक, इनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स थी फॉर द इंटायरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास वे डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स. इनके पास लॉ मेकिंग पावर्स अब नहीं थी और ये लॉ मेकिंग पावर्स एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई. सो द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, while the laws made under this act were known as act. अब यही डिफरेंस है रेगुलेशन और एक्ट के बीच में. क्या डिफरेंस है? पहले जब रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज के गवर्नर लॉज बनाते थे, रूल्स बनाते थे, उनको हम रेगुलेशन कहते थे. बट देन थ्रू दिस एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद जब एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिलती हैं, उसके बाद सारे लॉज को हम एक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज it ended the activities of East India Company as a commercial body which became a purely administrative body. So basically ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस थे, जो एक्टिविटीज़ थी एज अ कॉमर्शियल बॉडी, इसको अब कम्प्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई. ठीक है, पहले ये, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा है कि ये ट्रेड करने आए थे इंडिया में. ठीक है, एक कॉमर्शियल बॉडी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ये ट्रेड करने आए थे इंडिया में. एंड नाउ थ्रू दिस एक्ट, थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वी सी दैट इनको कॉमर्शियल बॉडी के बजाय इनकी एक्टिविटीज़ को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया. एंड इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट in trust of His Majesty, his heirs and successors. तो कंपनी की जो टेरिटरीज थी that were held by the name of in trust for His Majesty, his heirs and successors. Now another point is the Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition. ये important question है जो कि आ भी चुका है. एक open competition रखा गया for the selection of civil servants. ठीक है, and stated that Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from the court of directors. तो बात ये हुई कि पहली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू एक सिस्टम को लागू किया गया. उस सिस्टम के अंदर के रूल्स ये थे, उस सिस्टम के प्रोविज़न ये थे कि सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन किया गया और ये कहा गया कि इंडियंस को आप डीबार मत करिए किसी प्लेस, ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने के लिए. कंपनी के अंदर में इंडियंस को डीबार नहीं करना चाहिए. बट देन ये इंडियंस वाला जो पॉइंट है, ये वाला प्रोविज़न जो है निगेट कर लिया गया था जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काफ़ी ऑपोजिशन मिला, उनका काफ़ी ऑपोजिशन मिला. अब 1833 के 20 साल बाद 1853 में चार्टर एक्ट हमें देखने को मिलता है. So this was the last of the series of the Charter Acts passed by the British Parliament between 1793 and 1853. ये एक significant constitutional landmark माना जाता है 1853 को. ठीक है, फीचर्स देखते हैं. पहली बार किसी एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया, पहली बार. सो फॉर द फर्स्ट टाइम एनी एक्ट, एक एक्ट है जो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस किसके, गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको सेपरेट किया गया. इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल. तो पहली बार 6 नए मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रखा गया और उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया काउंसिल के अंदर में जब उनको प्रोवाइड किया गया. इन अदर वर्ड्स, एक सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया.
अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश होती है गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर, एंड विच इज़ नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका सोल पावर था, जिसका सोल ड्यूटी थी टू फॉर्म द लेजिस्लेशन, टू मेक द लॉज. दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज mini parliament, adopting same procedures as the British Parliament. Although एक mini parliament जो है बनाई गई काउंसिल के अंदर में, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल के अंदर में टू मेक द लेजिस्लेटिव एक्शंस, ठीक है, टू मेक द लेजिस्लेटिव लॉज, जिनके अंदर लॉ मेकिंग पावर्स दी गई. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट हुए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही अडॉप्ट हुए. नाउ लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी इन स्पेशल प्रोसेस. तो पहली बार लेजिस्लेशन को, अब क्योंकि पावर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दी गई है ना, लेजिस्लेटिव पावर्स अलग हो गई, मिलिट्री रेवेन्यू पावर्स अलग हो गई, तो पहली बार लेजिस्लेशन को एक सेपरेट, एक स्पेशल फंक्शन की तरह देखा गया. सेकेंड पॉइंट इज, अब 1853 को हम देख रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट इज कि 1853 के चार्टर एक्ट के साथ ही एक ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स देखा गया. जो कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज, पहले CCS कहा जाता था, तो कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो. अगर सवाल आए कि इंडियंस को कब अलाउ हुआ, तो 1853 में चार्टर एक्ट जो आया उसके थ्रू इंडियंस के लिए CCS विच इज कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज, दैट वाज आल्सो थ्रोन ओपन टू इंडियंस. अकॉर्डिंगली एक मैक्यूले कमिटी थी, ठीक है, द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854. तो पहला सवाल 1853 ईयर इम्पॉर्टेंट है, एक्ट इम्पॉर्टेंट है. दूसरा पॉइंट है इसमें, मैक्यूले कमिटी किस लिए थी, तो मैक्यूले कमिटी was thrown open, was established for Indian civil services, the company on Indian civil services. Another main point is it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for British Crown. मतलब कंपनी का जो रूल था वो एक्सटेंड किया गया और अलाउ किया गया कि वो इंडियन टेरिटरीज को पोजेस करे, जो भी उनके पोजेशन थे उसको वो रिटेन करे ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन. लेकिन इस पॉइंट ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उस पोजेशन को वो कितने दिन के लिए, कितने पीरियड के लिए रिटेन कर सकते हैं. अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स, तो पहले जो चार्टर्स थे दे स्पेसिफाइड द पीरियड कि कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए, किन पीरियड्स के लिए ये लोग इंडियन टेरिटरीज को रिटेन कर सकते हैं. Unlike the previous charters, this was a clear indication that company's rule can be terminated at any time the parliament liked. So this was the first time किसी चार्टर ने ये इंडिकेशन दिया कि क्योंकि हम पीरियड बता नहीं रहे हैं कि कितने पीरियड के लिए आपका पोजेशन जो है वो रहेगा, विच मीन्स कि कंपनी का रूल कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है. Now next important point is it introduced for the first time the local representation in the Indian Legislative Council. पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल के जो थे उनमें से 4 मेंबर्स वेर अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट, या जिनको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं. तो आउट ऑफ द 6 मेंबर्स of the Governor General Council, 4 were appointed by the provincial government of Madras, Bombay, Bengal and Agra. ये एक important point है जहाँ पे we get to see that the representation of localites happened for the first time, and out of 6, 4 जो members represent हुए थे वो local provincial government जो है बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और आगरा की, उनके थ्रू उनको represent किया गया.
So this was about the historical background of the Indian Constitution, the Indian polity. We saw the company rule, we saw the history कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, किस मकसद से वो आते हैं, कैसे एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आती है, कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल उनके ऊपर होता है, एंड देन हाउ द कंपनी रूल इस्टेब्लिश्ड, क्यों इस्टेब्लिश हुई, फिर रेगुलेटिंग एक्ट से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, इसके बाद अमेंडमेंट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, इसमें कई सारे पॉइंट्स थे. देन वी सॉ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1786, फिर हमने चार्टर एक्ट को देखा 1793, देन 1713, देन 33 एंड 53. तो 4 चार्टर एक्ट वी सॉ, एंड विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के चार्टर एक्ट से कंपनी रूल वॉज स्टॉप्ड, इट गॉट टर्मिनेटेड. इसके बाद 1858 से क्राउन रूल जो है वो शुरू होता है 1858 से, आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से वी गेट टू सी कि क्राउन रूल बिगैन एंड इट रिमेन्ड टिल द country got independent, that is till the year 1947. So we'll talk about the crown rule in next video. This was about the Lakshmikant series, word to word, chapter to chapter series. I hope we are able to relate with every word that has been mentioned. Important hai, although there are facts in this chapter, but then we can't help it, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा. So, thank you, and I shall see you in the next video.